بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بیٹا اینڈ آف ایئر سالانہ امتحان اسکول بیس اسیسمنٹ 2025-26 میں یہ گریڈ 7 7ویں کلاس کا اردو کا گیسٹ پیپر ہے۔ یہ ورژن 1 ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ورژن 2 اور 3 بھی اس ویڈیو میں شامل ہے، اور سبجیکٹو پارٹ بھی مکمل حل کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور جلد ہی ورژن 4، 5، 6 بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ایگزام کی تیاری بہتر انداز میں ہو۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ورژن 1 کا پہلے حصے کا معروضی سوالات والا جو حصہ ہے اس کا پہلا کویسچن۔ تو اس میں ہے فعل ماضی شکیہ کے استعمال والا جملہ، تو سی والا ہے صدف نے خط لکھا۔ وجہ کی جمع الجمع تو وجوہات ہوتی ہے۔ بی والا ہے محاورے کے استعمال والا جملہ، تو اس میں محاورہ ہے میں ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر اکتا گیا ہوں۔ بی والا ہے اس میں علم، تو ابن بطوطہ اور گڑیا ہے۔ بی والا کریکٹ ہے، اور اس کے بعد ہے 5 نمبر اس میں معرفہ یعنی خاص چیز شخص کا نام، تو سی والا ہے، اور اس میں محصول کا استعمال والا جملہ، تو اے والا ہے اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، اس میں شرط رکھی گئی ہے۔ اور 7 نمبر ہے مترادف الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہی ہوں، تو اے والا ہے زندگی بے حد خوبصورت اور حسین ہے۔ گلستان سعدی کے مصنف، تو جب نام آیا ہے سعدی تو لازمی بات ہے اس میں سعدی شیرازی ہوں گے، ڈی والا کریکٹ ہے۔ درجال میں مرکب یعنی 2 جملوں کو مل کر ایک جملہ بناؤ، تو یہ جیسے وہ گھر آیا اور جلدی سو گیا، 2 جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنا ہے۔ استعارہ کے استعمال والا جملہ، تو اے والا ہے اجمل دریری میں بالکل شیر ہے۔ تشبیہ کے استعمال والا جملہ، تو یہ اکرم شیر کی طرح بہادر ہے، تشبیہ دی گئی ہے، بی والا کریکٹ ہے۔ راشد منہاس کے جہاز کا نام تھا، T-33 تھا، سی والا کریکٹ ہے۔ اور لفظ معتبر کا معنی ہے تو یہ ہوتا ہے قابل اعتبار، ڈی والا علت کا استعمال والا جملہ، تو یہ ہے سی والا احمد بیمار ہے اس لیے سکول نہیں گیا۔ 15 نمبر ہے سب کا خوش سے بننے والے الفاظ کی درست خوش یہ ہوتے ہیں خوش بخت ہے، خوش مزاج، خوش لباس۔ باقیوں میں خوش رنگ نہیں ہوتا، اسی طرح باقی میں بھی فرق ہے۔ اور 16 نمبر ہے مذکر غیر حقیقی کی مثال، تو یہ قلم ہے، اے والا ہے کریکٹ۔ اور 17 نمبر ہے ندائیہ کے استعمال والا جملہ، تو یہ ندائیہ کی نشانی ہے میری بات سنو، کسی بلانے کو بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو 18 ہے رابطہ کے استعمال والا جملہ، تو جس میں 2 باتوں میں رابطہ ہو، تو جیسا کہ جلیل نے کہا ابا جان فیصل مسجد گئے ہیں، یہ رابطہ ہے، اس میں یہ والی نشانی ہے۔ متشابہ الفاظ جن کو بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی مختلف ہوں، تو وہ عام اور عام ایک عام چیز ہوتی ہے اور ایک عام کھانے والا ہے، سی والا ہے۔ لفظ عمل کا درست لفظ ہے، تو یہ والا ہے، سی والا کریکٹ ہے۔ تاکید جس میں تاکید کی گئی ہو تو وہ بی والا ہے، میں دوسروں کا حق کبھی نہیں چھینوں گا۔ اور اس کے بعد ہے 22 نمبر مشہور کتاب ضرب کلیم، تو علامہ اقبال نے لکھی تھی، یہ والا کریکٹ ہے۔ اور فتح اور شکست کھیل کا حصہ ہے، جملے متضاد فتح ہے اور شکست ہے، بی والا کریکٹ ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کب ہے؟ 7 مارچ کو۔ اور 25 نمبر ہے مثلث کے اندر بنے ٹریفک کے نشان کا مقصد ہے خطرے سے آگاہ کرنا، آپ نے روڈ کے اوپر دیکھا ہوگا، بی والا کریکٹ ہے۔ مشکوک سرگرمی کی اطلاع تو اپنے پولیس کو دینی ہے، سی والا فوج کو نہیں، رینجر اور کونسلر کو بھی نہیں، یہ صرف اور پولیس کا کام ہے۔ 27 نمبر ہے فضائی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے، درخت لگا کر کم کیا جا سکتا ہے، اس کو شجرکاری کے ذریعے، اے والا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے یہ چچا چھکن نے تصویر ٹانگی والے سبق میں سے یہ پیراگراف ہے، یہ شروع میں ہی ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں سے سوالوں کے جواب ہیں، جیسا کہ چچا چھگن ٹگنی کا ناچ نچاتے تھے، تو یہاں پہ گھر بھر کو یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اے والا کریکٹ ہے۔ تصویر لگانے کا کام شروع کیا، اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں پہ اے والا کریکٹ ہے۔ قمیض بھی نہیں ہے، پگڑی بھی نہیں ہے، اینک بھی نہیں ہے۔ میخیں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیل ہوتے ہیں، یہ عام سب کو پتہ ہے، تو یہ ہے ڈی والا کریکٹ ہے۔ اور 31 نمبر ہے اس عبارت سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے کام کے لیے دوسروں پر بوجھ نہ ڈالے، جیسا کہ اس کہانی میں چچا چھکن دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالتے تھے۔
32 नंबर है पैराग्राफ का मुनासिब عنوان, तो ये चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी सबक का ये उन्वान होगा। इसके बाद इसका वर्जन 2 है फेल माजी शकिया के इस्तेमाल वाले जिसमें शक हो तो वो सदफ ने लिखा होगा, और लकब की जमा तो अलकाबात होते हैं। ए वाला है मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला, तो वो ए वाला है इम्तिहान में अपनी का नाकामी पर हसन आब हो गया। आब जो है वो मुहावरा इस्तेमाल है। और अलम की दुरुस्त फहरिस्त तो ये है मादर मिल्लत और इब्ने मरियम। तो इसके बाद है 5 नंबर मारफा जो खास चीज़ वाला, तो रावी भी खास है और मज़ार खास भी खास है। 6 नंबर है इस मौसूल, तो इसमें सी वाला दरख्त जो मैंने लगाया था अभी ज़्यादा फला फूला नहीं। मुतरादफ अल्फाज तो ये ए वाला करेक्ट है। 8 नंबर दीवान गालब, तो ये असदुल्ला गालब ने ए वाला है। मुरक्कब जुमला 2 जुमलों वाला, तो बी वाला करेक्ट है। अस्तारा वाला तो की तशबीह मेरा बेटा तो बिल्कुल शेर है, और इसमें तशबीह वाला तो अकरम शेर की तरह बहादुर है। मिनास 1951 में। और इसके बाद 13 नंबर विरासत का मैनी, तो ये मिरास होती है बी वाला। इल्लत वाला है ए वाला करेक्ट है। 15 साबका इन से बनने वाले तो अनगिनत अनमोल और अनजान है। और 16 नंबर गैर हकीकी, तो वो कमरा है। और ताईद निदाइया है, तो जनाब मेरी बात सुने बुलाया गया। राब्ता तो ये बी वाला है। मुतशाबा अल्फाज तो ये वो वाले है। अलम और अलम तो इत्मीनान का है। इत्मीनान ये वाला तलफ़्ज़ है। और ताकीद जिसमें है तो वो सी वाला है। धूप में हरगिज़ ना बैठो बाले जिब्रील का इलामा इकबाल ने लिखी थी। और ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जुमले मुतजाद ऊंच और नीच है। डी वाला करेक्ट है। अरफा करीम का नवाजा गया तम आए उसने कारकर्दगी से। सुरख बत्ती का मतलब है गाड़ी रोक लें। और दहशत गर्दी एक अमल है बुज़दिलाना बी वाला। 27 नंबर है अगर शख्स एक पौधा लगाए तो हम जमीन और इस पर मुकीम जानदारों को बचा सकते हैं, तबाही से सी वाला है। ये आदाब अदब की जमा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ है, इसमें से सवाल है। तो पहले अदब की जमा, तो यहाँ लिखा हुआ है आदाब अदब की जमा है, तो सी वाला करेक्ट है। साली मुआशरा वजूद में आता है, तो यहाँ पे इसी के अंदर ही आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। ये वाला है मुश्तरका मवाद और बामी रवाबत से वजूद में आता है। मुआशरा डी वाला करेक्ट है। इसी तरह सवाल नंबर 30 का तकवा के मैनी बरेजगारी है। और 31 का मुआशरे का इस्तेकाम जरूरी है खानदान और मुआशरे के लिए, खानदान और पूरे मुआशरे के लिए सी वाला करेक्ट है। और 32 का है इबारत का मौजू उन्वान तो अदाब मुआशरत है। और इसके बाद वेरिएंट नंबर 3 है। और फेल माजी शकियात तो डी वाला करेक्ट है। लकब की जमात बी ए वाला है। मुहावरे सी वाला है। और 4 नंबर का बी वाला है। 5 नंबर का बी वाला है। 6 का ए वाला है। 7 का ए वाला है। 8 का ए वाला है। 9 का बी वाला है। 10 का ए वाला है। और 11 का बी वाला है। 12 का डी वाला है। 13 का डी वाला है। 14 का बी वाला। 15 का ए वाला। 16 का ए वाला। 17 का सी वाला। 18 का डी वाला। 19 का सी वाला। 20 का ए वाला। 21 का बी वाला। 22 का ए वाला करेक्ट है। 23 का बी वाला है। 24 का सी वाला है। 25 का बी वाला है। 26 का सी वाला है। 27 का डी वाला करेक्ट है। इसके बाद ये जो वर्जन 1 में था वही वाला पैराग्राफ है और वही वाले सवाल हैं। 28 का ए, 29 का ए, 30 का डी, 31 का ए है और 32 का बी है। और इसके बाद ऐसा दो में इंशाइया सवालात। ये वर्जन 4 के क्वेश्चन है। अशार की तशरीह करनी है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल कुल जिसे अंदेश आए जवाल ना हो। ये 2 शेर हैं जिनकी तशरीह करनी है। तो ये पहले शेर की ये वाली तशरीह है और दूसरे शेर की ये वाली तशरीह की हुई है। अगर आप लोगों ने पहले से कोई याद की हुई है तो बेहतर है वही लिखें, वरना ये याद कर सकते हैं। इसके बाद 34 नंबर है किसी एक अनुमान पर 250 अल्फाज पर मजमून लिखना है। तो वतन की मोहब्बत है, यहाँ इलामा इकबाल है। तो यहाँ मैं नमूने का जवाब इलामा इकबाल के तौर पर ये मजमून लिख दिया है। ये आप याद कर लें या पहले याद है तो वही लिखें। 35 नंबर है किसी एक उन्वान पर कहानी तहरीर करनी है जिसका काम उसी को साजे या जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये हम यहाँ पे नमूने की जिसका काम उसी को साजे वाली कहानी, ये वाला कहानी लिख देते हैं, लिखी है जिसका काम उसी को साजे वाली कहानी नमूने की है। अगर कोई और आपने याद किया है तो वो लिख लें। 36 नंबर पे
मामू के नाम खत लिखें जिसमें उनका घड़ी का तोहफा भेजने का शुक्रिया। तो ये नमूने का खत लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई और याद की हुआ तो वो लिख लें। इसके बाद है पहला हिस्सा है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ पढ़ दिया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा, उसमें से सवालों के जवाब पूछे जाएंगे ज़बानी, तो वो आप लोगों ने बताने हैं। यहाँ पे ये है जज़ाम कोड का मर्ज जो है उसके बारे में है, यहाँ तक पैराग्राफ है, जिसमें पहला सवाल जो है वो है रूप अलफ से कि 1960 में कौन सा मर्ज फैला, तो ये जज़ाम का मर्ज था। ये नीचे इसी के जवाब लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब ये है कि कोढ़ का मर्ज फैल गया, लोगों को इस मर्ज के डर से कहाँ छोड़ आते थे, तो घर से दूर बस्तियों छोड़ आते थे। और इसके बाद इस मर्ज में कब पाया गया, तो 1996 में, ये इसका जवाब है। इसी तरह ग्रुप 2 के जो सवाल हैं उनके ये वाले जवाब मौजूद है। इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ने के लिए कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है अपनी बुक में से, या ये पेपर वाला ही ज्यादातर अपनी बुक से आप लोगों के सुना जाएगा, तो ये 1 मिनट में आप लोगों ने पढ़कर सुनाना है। इसके बाद वर्जन जो है 2 है, जिसका ये 33 नंबर पहला सवाल है। ये देखो तो कौमों में क्या इत्तेहाद, इत्तेहाद नज़म में से ये 2 शेर हैं जिसमें आप लोगों ने तशरीह करनी है। ये नमूने की बहुत मुख्तसर सी तशरीह है, ये याद करें या पहले याद की हुई है तो वही लिखें। सवाल नंबर 34 है, 250 जुमलों पर मजमून लिखना है। तो यहाँ पे भी 2 मजमून है, वतन की मोहब्बत और इलामा इकबाल। वतन की मोहब्बत ऊपर आ चुका है और इलामा इकबाल नया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं वतन की मोहब्बत के बारे में, इलामा इकबाल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आपको नमूने का मजमून दिया है, यहाँ से यहाँ तक है। आप इसे याद करें या आपने पहले कोई याद किया हुआ तो वो लिखें। के बाद 35 नंबर है, एक सबक अमेज कहानी तहरीर करनी है, झूठ का अंजाम या जैसी करनी वैसी भरनी। ये वाली कहानी हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पे हम देखते हैं झूठ का अंजाम। तो ये वाली है झूठ का अंजाम। वो गडरिया जो बकरियां चराता था झूठ बोलता है गाँव वालों से कि शेर आया, तो एक दिन अचानक ही शेर आ जाता है जिससे वो उसकी बकरियां खा जाता है। तो ये वाली वो वाली कहानी है। इसके बाद सवाल नंबर 36 है, ये उनकी घड़ी का तोहफे वाला वही वाला खत है जो आप ऊपर देख चुके हैं। ये वाला लिखें या और अपनी मर्जी से लिखें। इसके बाद है सवाल नंबर 37, यही वो जज़ाम के कोड के मर्ज वाला पैराग्राफ है। दोबारा सवाल और जवाब आए हैं उसी में से, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद ये रीडिंग वाला भी वही वाला पैराग्राफ है। इसके बाद 3 नंबर वर्जन है जिसमें ये वाली तशरीह, ये वर्जन 2 वाली तशरीह है जो ये वाली है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद आ जाता है मजहबी रवादारी या वतन की मोहब्बत। तो हम पहले ये मजमून पढ़ चुके हैं वतन की मोहब्बत, और यहाँ पे आप देख लेते हैं मजहबी रवादारी। तो ये मजमून है नमूने का यहाँ से लेकर यहाँ तक मजहबी रवादारी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से एक आपके पेपर में लाजमी आएगा। और इसके बाद है 35 नंबर सबक आमोज कहानी। तो ये जिसका काम उसी को साजे या जैसी करनी वैसी भरनी। ये 3 कहानियां टोटल बनती हैं, तीनों कहानियों में से एक कहानी आपके पेपर में आएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका जवाब है। आप तीनों में से तीनों कहानियां याद कर सकते हैं। और इसके बाद है अपने वालिद को खत लिखना है जिसमें उन्हें नई किताबें खरीदने के लिए पैसे मंगवाने हैं। तो यहाँ पे नमूने का खत लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप ये याद करें, बहुत मुख्तसर सा है। यहाँ आपने पहले याद किया तो वही वाला लिखें। इसके बाद सवाल नंबर जो 37 है, वही वाला पैराग्राफ और वही वाले सवाल और जवाब, वही वाला पढ़ने वाला पैराग्राफ था, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया गया। तो अजीज तलबा, यहाँ पर ये तीनों गेस्ट पेपर मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद देगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।